Honorable Chief Minister of Punjab, Sardar Bhagwant Mann Singh जी, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, इंडस्ट्री जगत के मेरे साथी और यहाँ पर आए all the leaders and all the guests, ladies and gentlemen, Sat Sri Akal. Today I am in Punjab and it makes me feel very happy to see the progress that Punjab is making. मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हिसार से, जो कि पहले पंजाब का हिस्सा था। और एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि जब हिसार हरियाणा का हिस्सा था तब मेरे फादर, क्योंकि हम हिसार हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो मेरे फादर वहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाहते थे और वो कलकत्ता में थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा मन कलकत्ता में नहीं लगता है, आई वांट टू गो बैक टू हिसार। तो वो उस समय सरदार प्रताप सिंह कैरो जी चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के पंजाब के, तो उनसे आके मिले। तो कैरो साहब ने उनको कहा कि जिंदल साहब, आप पंजाब में प्लांट लगाइए, आप क्योंकि जॉइंट पंजाब था। तो माय डैड सेड कि जी मैं हिसार में लगाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल आप हिसार में लगाइए और मैं खुद आऊँगा उसका फाउंडेशन स्टोन ले करने। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 60s की बात है, अर्ली 60s की एक्चुअली। तब सरदार कैरो साहब ने वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा और फिर उसका इनॉग्रेशन भी किया। और दैट वाज आवर फर्स्ट प्लांट अर्ली 60s में, 61 62 में। और उसके बाद माय फादर नेवर लुक बैक और हिसार का हमने बड़ा ग्रो किया और पूरा हिसार बिकेम अ इंडस्ट्रियल टाउन। क्योंकि अदरवाइज तो पंजाब में स्टील के साथ अगर मैं बात करूं, जैसे नरेंद्र ने कहा कि पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन अ स्टील कंट्री। मंडी गोविंदगढ़ जो है, वो जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग सुनते थे कि मंडी गोविंदगढ़ यूज्ड टू डिसाइड दैट व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ स्टील द नेक्स्ट डे। वहीं से प्राइस निकलता था मंडी गोविंदगढ़ से, जो कि ना तो कोई आयरन ओर की बेल्ट थी, ना कोई यहाँ पर कोयला था, ना यहाँ पर कोई स्क्रैप था, बट स्टिल मंडी गोविंदगढ़ वाज द लीडर इन डिसाइडिंग व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ स्टील। क्योंकि यहाँ का जो आदमी था, जो आदमी है पंजाब का, that decided that what will be the steel price in India, whether it is in Mumbai, Chennai, Calcutta or wherever else. Then at that time, then later on industry developed and it became more integrated and it went to the places where the mines were, and that's how the steel became nationwide industry. But still Ludhiana reminds me of all the engineering marvel that happened at that time. I'm talking about early 60s, 70s. Everything used to happen in Ludhiana. Whether there were the lathe machines were manufactured in Ludhiana, all the jugaad, the word jugaad came from Punjab. So when I tell back home in South India, where I have most of my industries, that jugaad is a word which means management, managing the technology. But in today's world it's the AI, it's the new technology, machine learning. That was all done through jugaad at that time. And but it is a innovation that the Punjabi did, we all did at that time. And I remember when I was a kid, I also made a small car when I was 12-year-old as a jugaad. And I used a pump and I put a diesel pump and I made a small car and I did a parade in the 26 January के उसमें वो parade किया. So I remember, so that is our quality as a Punjabi, because I also believe that I am a Punjabi, and because that is in our blood, that we have that quality, that innovative strength that we have. And of course Punjab is known for its hosiery, its textile, it's a small scale industry, it's cycle production, which is world's largest. So I don't think I need to tell the Punjabis about what Punjab is about. Punjab is not only agriculture. Today, if I'm sitting in Mumbai, everybody thinks Punjab is agriculture, but actually Punjab is far advanced in industry than any other state in India. And I'm so happy that Honorable Chief Minister is now bringing this industrial culture back into Punjab.
and Arora Saab was in Mumbai in my office, and after we had a very interesting discussion about Punjab's industrial growth and what कि पंजाब में क्या करना है, कैसे करना है, JSW ग्रुप को क्या करना है, फिर सब बात हो गई, चाय वगैरह हो गई, सब चल पड़े। हम लोग जब वापस निकल रहे थे तो मेरे को बोले, जी आप मुंबई वालों की तरह से मत करना कि हाँ हाँ करके नहीं आए, आपको आना है पंजाब में। तो मैंने कहा जी मैं जरूर आऊँगा। तो इसलिए आई हैव कम ऑल द वे टू अटेंड दिस मीटिंग एंड टू मीट ऑल ऑफ यू। सो I would like to thank Arora ji for inviting me today here. JSW Group का जहाँ तक सवाल है, so we have a very nice cute plant here in Rajpura where we manufacture tin plate, galvanized steel, color coated steel, which is then supplied in this area only. We are not re-exporting it to outside. It goes northward, Punjab, Himachal, Kashmir, Jammu. यहाँ से सब इस एरिया को फीड करता है। एंड नाउ वी हैव अ ह्यूज प्लान टू एक्सपैंड दैट फैसिलिटी। वी वांट टू इन्वेस्ट क्लोज टू 3,000 crore rupees to build this massive color coated and tin plate complexes to feed this part of, because I believe that India has a huge future, tremendous opportunity अपने देश के अंदर है। हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही एंटरप्राइजिंग है, और हमारा जो जैसे पंजाब इज सो स्ट्रॉन्ग इन एग्रीकल्चर, तो ये सब टिन प्लेट के बॉक्सेस में, वेदर इट इज टोमेटो केचप, वेदर इट इज juices, it will get filled. So the demand for tin plate is just growing. So that's what we are working on to build this capacity. जितनी भी capacity मैंने पिछले 25 साल में स्टील में अपने देश में लगाई है, वो कम ही पड़ जाती है। जब वो चालू होती है तब तक वो शॉर्ट हो जाती है। तो we are now planning a much larger capacity wherever we are doing, क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग सो रैपिडली। आज हमारी इकोनॉमी 4-5 ट्रिलियन डॉलर की है। अगले 15 साल में हम लोग 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे। सो वी विल बी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट, ऑफ कोर्स वो तो हम अगले साल 2 साल में हो जाएंगे, बट वी विल ग्रो सो मल्टीफोल्ड कि हमारी कैपेसिटी हर चीज में कम पड़ने वाली है। तो इसीलिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप बहुत तेजी से यहाँ पर स्टील का ग्रोथ कर रहा है। हमारे डिफेंस के अंदर वी आर सेटिंग अप इन चंडीगढ़ में, वी हैव अ वेरी नाइस प्लांट वेयर वी मैन्युफैक्चर दीज एम्फीबियन व्हीकल्स विच वी आर सप्लाइंग टू द डिफेंस। पिछले दिनों जब पंजाब में फ्लड आया था तो हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर जसकीरत सिंह जी, उन्होंने वो दे अप्रोच टू चीफ सेक्रेटरी एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एंड देन दोज व्हीकल्स वेंट टू सेव so many people, the newborns, the pregnant women, they were evacuated from the flood affected areas. So these vehicles were used for even for civilian purposes. So this is what the new projects are doing. So मैं मुख्यमंत्री जी से मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि पंजाब में जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो पंजाब का जो वापस जो एक रेनेसां होने वाला है, जो इंडस्ट्रियल रेनेसां, जिसकी वजह से पंजाब विल अगेन बी नोन एज द लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न, नॉट ओनली इन एमएसएमई विच इट इज ऑलरेडी टुडे, but even in other areas, in large industries. Tata Steel is already building a very large steel plant here, which is a recycling of the scrap. We are building our own downstream various facilities, large investment. So पंजाब जो है वो हम पंजाब के प्रोग्रेस पार्टनर बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम पंजाब के साथ मिलके हम पंजाब की तरक्की करें, क्योंकि पंजाब मेरा घर है। तो मैं अपने घर की तरक्की के लिए जो कुछ होगा मैं करना चाहूँगा, एंड आई विल डू इट। और पंजाब की जो मुझे एक बड़ी सुंदर सी एक चीज़ है जिसको कहते हैं चढ़ती कला, जिसका वो मुझे बड़ा पसंद है। मैं अपने हर स्पीच में चढ़ती कला के बारे में बात करता हूँ, और उसका मतलब है कि आगे बढ़ना, हमारी सोच को आगे बढ़ाना, हमारी थिंकिंग को आगे बढ़ाना, हमारा जो माइंड है उसको एक्सपैंड करना। तो हर चीज़ में हम लोग चढ़ती कला की बात करते हैं, और जहाँ भी जाते हैं तो ये बहुत ही हमको बहुत अच्छा लगता है पंजाब के बारे में। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ, आई फील पंजाबी माई सेल्फ, तो आई टॉक अबाउट पंजाब एंड आई टॉक अबाउट हरियाणा एंड हाउ वी हैव ग्रोन, हाउ दीज स्टेट्स आर लीडिंग द होल कंट्री। सो दिस इज व्हाट आई फील वेरी, और मैं इसी विश्वास के साथ और इसी भावना के साथ आज पंजाब आया हूँ। और मैं आज भारत की जो हमारी जो स्टोरी है, जो ग्रोथ स्टोरी है पूरी दुनिया के अंदर, जो हम बताते हैं, जो लक्ष्मी निवास जी अभी आप सबको बताएंगे कि दुनिया में भारत का क्या उनका रोल रहा है, कैसे उन्होंने स्टील को पूरे दुनिया के अंदर इंडिया के नाम को रोशन किया है।
तो मैं उसी स्टोरी का आज मैं पंजाब का जो योगदान है उसकी मैं बात कर रहा था। सो इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।